To Finance Minister Piyush Goyal, who in a press conference was giving more details on the budgetary proposals that he had presented earlier today in Lok Sabha. And he made a clarification. He said that no income tax will be applicable to only those who have the annual income of less than 5 lakh rupees, and for those with more than 5 lakh rupees annual income, the old tax slab will continue, which means that you need to then pay between 2.5 and 5 lakhs 5%, between 10 lakhs and between 5 lakh and 10 lakh 20%, and between over 10 lakh you need to pay 30%. So the old slabs continue for those who have the annual income of more than 5 lakh rupees, but if you have an annual income of less than 5 lakh rupees, then you don't need to pay any income tax. So that clarification really has come in from Finance Minister Piyush Goyal. Besides that, he hailed the decision to provide income support to farmers, the PM Kisan Yojana, as a historic decision. He said that 12 to 12.5 lakh crore, in fact, 12 to 12.5 crore farmers are going to benefit from the scheme. And he also said that the pension scheme will be implemented from this month itself, that is from February 2019 itself. Besides that, he also hailed, in fact, the decision to set up a National Kamdhenu Ayog for greater productivity of cows and for sustainable genetic upgradation of cow resources. And he towards the end said that the focus of his government has been to usher into development with fiscal prudence and to take that development to all corners of the country. And with that vision, inflation too has been brought under control. To talk about all the important aspects of the interim budget, we have with us in the studio Rahul Gupta. He's Chairman, Export Promotion Council for EOUs and SEZs, and he's also a CEA, so he has a strong hold over all the issues that really are associated with the interim budget. Welcome, Mr. Gupta, to our special presentation. Your first thoughts on what you make of the budget, the first thoughts that come to your mind. See, as it was expected that budget will be touching the common man, and budget has been touching the common man. The tax has been reduced in two formats. That till 5 lakhs, if you have less than 5 lakh income, then there is no tax. And also from 2.5 lakhs to 5 lakhs. Earlier it was taxed at 10%. That has also been reduced to 5%. So basically the ones who have been added as income tax pays, for example, this 1 crore people who have started becoming the new taxpayers, so they have been benefited. They have been rewarded of paying tax. That's very good. अगर यदि एक आम आदमी जो कि टैक्स नेट में नहीं था and he is just coming to tax net and who has been feeling that once you get into tax net then you will always be paying more and more tax, so he has been told no, it's not like that. Once you get into tax net you may get benefited also. So that's a great thing, there is no doubt about that. At the same time, for generally businesses at large, there has not been much what has been added. What I feel has been, it has been common people, it's been people on the lowest part of the pyramid, they have been touched. For example, farmers, there have been subventions which have been added. Subvention means that whatever interest a farmer has to pay, out of that a portion of interest will be paid by the government. So farmers there have been talks since last 15 days that what will government do for the farmers. There have been farmers suiciding, there have been 16,000 farmers who have suicided in the last 5 years. So that's a positive aspect that government has responded to it. They have benefited them in some other way. Even one of the important issues which was being discussed because of the farmer loan waivers was कि यदि फार्मर का लोन वेव हो जाएगा तो कभी वो देगा नहीं दोबारा. बिल्कुल. सो नाउ गवर्नमेंट हैज सेड कि यदि आपका इंटरेस्ट की छूट, यदि आप लोन वेव नहीं कराते हैं और आप समय पे ब्याज देते हैं तो 2% की जगह 3% है. दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिवॉर्डेड यू मोर 50% if you pay your interest. So this is good discipline. That means there is a carrot and there is a stick on both the sides. RBI would be very happy. RBI would be happy. The NPA issues which were being predicted, that the moment the tax loan waivers are there, people may end up taking it as a general affair and they may stop paying the loans, has been somewhere, I'll say at least to some extent, has been taken care. That's a great aspect. राहुल जी, मतलब आप खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पीयूष गोयल जी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसा लग रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये बजट बनाया है और जो नंबर्स हैं वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा है, पूरा प्रोफेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, नहीं? हाँ, देखिए स्वीडिश जो आखिरी में दिया उस हिसाब से तो ज़रूर लगता है कि बजट ख़त्म होते होते लोग 5 लाख की बातें चल रही थी और उन्होंने बिल्कुल सही समय के ऊपर है और इतना उसको पार्लियामेंट ने इतना पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, ऐसा है. हाँ, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आमतौर पे जो देखे जाते हैं कि इंडिविजुअल टैक्सेस के हिसाब से वो बहुत उस हिसाब से उन्होंने आम आदमी को टच किया है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. और वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स को एक तरह से नमन भी किया संसद के पटल पर और उन्होंने थैंक यू कहा टैक्स पेयर्स को. देश को चलाने के लिए आप सभी का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है. छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद भी बजट 2019 पर एक खास परिचर्चा लगातार जारी है. बंधन की ताकत से गौरव की पहचान है हम,
शुद्धता के वादे से हर कदम साथ है हम। RINL वाइजैक स्टील। बढ़ते कदम है बेटियों के, सोच है बदलाव की। गांव-गांव संवर गया है, सोच नव निर्माण की। राम राम काका। सुबह सुबह कहाँ चली बिटिया रानी? गांव की तरक्की करने। ये तरक्की की हलचल है, ये तरक्की की हलचल है। मेरा भारत अब डिजिटल है, मेरा भारत अब डिजिटल है। डिजिटल इंडिया के तहत CSC के द्वारा गांव का स्वरूप बदल गया है। जो काम करवाने दूर शहर में जाना पड़ता था, वो सर्विसेज अब गांव-गांव पहुंच गई हैं, ताकि गांव कहीं पीछे न रह जाए। और इन्हें पूरा कर रहे हैं गांव के लोग और ऐसी सशक्त महिलाएं। मेरा भारत अब डिजिटल है। हमारा तो गांव हो या शहर दोनों जगह वोटर कार्ड है। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास। अब इलेक्टोरल रोल में सारे देश का डाटा दिखता है। अभी ठीक कर लेते। गुड सिटीजन होने के नाते अपने मल्टीपल एंट्री को हटाने का जिम्मेदारी है आपका। समझे? बस www.nvsp.in पर जाएं और अपनी मल्टीपल एंट्रीज हटाएं। अब वोटर संबंधी सारी सुविधाएं www.nvsp.in पर ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। अरे मैं होना चिंता क्यों कर रहे हैं? फुल सेटिंग कर लेते हैं हम लोग। एक मिनट, जानते हैं मेरे बाप कौन है? भाई साहब कौन नहीं जानता। 1892 में वो पहले भारतवासी थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। उनकी किताब पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने ही अंग्रेजों की लूट के बारे में हम हिंदुस्तानियों की आंखें खोल दी थी। आप पारसी लोग जो हैं हमारे देश की शान हैं। मैं आपको पारसी दिख रहा हूँ। आप पारसी नहीं है, आप पारसी नहीं है, हैं? आप दादा भाई नौरोजी के बेटे, मतलब ये रोड आपके बाप की नहीं है? मैंने कब कहा ये रोड मेरे बाप की है? तब फिर बिना सीट बेल्ट पाए फोन पे गल कर दे, शर्म नहीं आती तोनू? हेलो, पैसे पार देना। पाजी फर्ज करो ए रोड मेरे बाप दी होंदी, फिर ते मैं उन्हें भी फाड़ लेंदा। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप के नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। अरे कहाँ जा रहे हो? रात से मुन्नी को बहुत तेज बुखार है, डॉक्टर को दिखाने क्लिनिक जा रहे हैं। तो सरकारी अस्पताल लेके जाना, वहाँ 1 साल तक बच्चे का इलाज मुफ्त होता है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में मां के लिए गर्भावस्था और डिलीवरी से जुड़ी जांच और इलाज और बच्चे के लिए 1 साल की उम्र तक जांच और इलाज की सुविधाएं पूरी तरह मुफ्त। दवा, जांच, आना जाना, नॉर्मल या ऑपरेशन वाली डिलीवरी, उस वक्त अस्पताल में रहना, खाना और 1 साल तक के शिशु का इलाज भी। तो आज ही अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल से संपर्क करें। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अंतरिम बजट 2019-20 अब संसद में रखा जा चुका है। अंतरिम बजट पर तमाम आपने प्रतिक्रियाएं देखी और सीधे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। वित्त मंत्री पीयूष गोयल तमाम मुद्दों पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए, मीडिया को संबोधित करते हुए, और बार बार बात वही आ रही है कि मध्यम वर्ग के लिए, जो किसानों के लिए और जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए किया गया वो अभी तक हुआ नहीं था, इसलिए इस बजट को बहुत सारे लोग ऐतिहासिक कह रहे हैं। थोड़ा सा नंबर्स में जाते हैं और राहुल जी हमारे साथ हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं और एक्सपोर्ट की दुनिया से भी जुड़े हुए हैं। रोजगार एक बड़ी चुनौती कहा जा सकता है सरकार के सामने, और ये माना जा रहा था कि इस बजट में कुछ न कुछ MSME सेक्टर के लिए, एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए या फिर असंगठित क्षेत्र तो हमने देखा ही, तो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आप क्या कुछ देखते हैं इस पूरे बजट? देखिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए तो कुछ खास मुझे लगता है नहीं आया। ऑलरेडी एम्प्लॉयड के लिए काफ़ी कुछ आ गया। ओके, मतलब जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं उनके टैक्स रेट कम हो गए, परंतु जिसको उद्योग ही नहीं है जिसके पास, तो ना तो नया उद्योग खोलने के लिए कुछ नई चीज़ आई है, ना जो पुराने नए उद्योगों के अंदर ऑलरेडी लोग व्यवसायित हैं उनके लिए कुछ आया है। तो उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की जो कल पिछले 24 घंटे से जो बातें चल रही हैं, शायद वो एड्रेसल एकदम नहीं रहा। उसके 1-2 रीजंस भी हैं। पहले बजट के दौरान इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब एक्साइज और कस्टम्स ड्यूटी एक एजेंडा पे रहता था। तो जब से GST काउंसिल हर महीने मिलने लगी है, जैसे कल भी GST काउंसिल की मीटिंग थी, अब हर महीने कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आते रहते हैं, तो शायद इसलिए वो बजट का पार्ट इतना मूल रूप से नहीं रहने लगा। और जिसका रोल बहुत है, आम जो खरीद फरोख्त होती है व्यापार के अंदर, उसमें GST रेट्स, GST की स्कीम, मतलब जो पहले एक्साइज के तौर पे होती थी, वो सब बहुत मायने रखती हैं।
तो जीएसटी का थोड़ा सा जिक्र तो किया इन्होंने, फ़ायदा पहुंचेगा छोटे मध्यम उद्योग, ऐसा उन्होंने कंपोजिशन स्कीम का जिक्र किया कि आने वाले, तो हो सकता है जब ये चीज़ें इफेक्टिव हो जाएं तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, भले ही इसका हिस्सा नहीं है लेकिन टैक्सेशन की दुनिया तो प्रभावित करती है। एक हाँ बजट स्पीच में एक चीज़ कही है वित्त मंत्री ने कि 1% GST लगेगा जो MSME के अंदर आएगा। अब पहले एक्साइज के समय में ये स्कीम होती थी 3 करोड़, यदि 3 करोड़ आपकी टर्नओवर है तो आपको एक्साइज नहीं लगता था। तो आज GST में वो कॉम्पोजिट स्कीम में 1% लगना है। तो यदि, और साथ में ये भी कह दिया कि 25% चीज़ें MSME से ही खरीदनी है, उसका बहुत फ़र्क पड़ना चाहिए इन्फ्लेशन के ऊपर। यदि वो स्लैब वित्त मंत्री ने बताया नहीं है, यदि वो स्लैब एक अच्छा स्लैब रहता है 3 करोड़ 4 करोड़ जैसा, तो जो लोग वो माल बना रहे होंगे, जो कुछ भी माल बना रहे होंगे और उस स्लैब के अंदर होंगे, तो उनकी बेचे हुए प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम हो जाएगी। तो उससे मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट और एक बड़े उद्योग का प्रोडक्ट में अपने आप इनहेरेंट कॉम्पिटिटिवनेस आ जाएगी। फ़र्ज़ करिए आप कोई पानी की बोतल ही है जो आमतौर पे 10 रुपये की बेची जा रही है और उस पर 12% GST है, तो ₹1.25 आज सरकार को जा रहा है उसमें। और यदि छोटे लघु उद्योग वाला आदमी उसको बनाएगा तो वो टैक्स बिल्कुल नॉमिनल रह जाएगा, 10 पैसे रह जाएगा। तो उस केस में उसका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ेगा। परंतु उसकी सारी बातें परतें सारी शायद वित्त मंत्री की स्पीच में नहीं पता चली हैं, तो मुझे लगता है वो जैसे ही CBIC नोटिफाई करेगा तब वो पता चलेगा। Were you expecting any tax ops on customs duties which are of course not covered under GST, because we've seen in the past how custom duties have been increased on several commodities in order to boost Make in India? In custom duty for exporters, yes, we were expecting various kind of exemptions. For example, I'll give you a macro example. 5 lakh crore is what has been invested in SEZs in India, and they export only worth 5 lakh crore. तो यदि आप अपने व्यवसाय में 5,000 रुपये लगाएंगे तो आप चाहेंगे कि कम से कम 10-15 हज़ार का व्यापार हो। तो देश में ऑलरेडी 70 साल में इन्वेस्ट बहुत कुछ हो गया है, सरकार ने भी बहुत पैसा लगा दिया है और निवेशकों ने भी बहुत पैसा लगा दिया है। आज ज़रूरत नया पैसे लगाने से ज़्यादा जो ऑलरेडी लगा हुआ है उसको सुचारू रूप से चलाने की ज़रूरत है। तो उसमें कस्टम ड्यूटीज़ में एक्सपेक्टेड था कि जो SEZs के अंदर जो मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं उसमें जो DTA है जो SEZ में नहीं है, वो यदि अपना माल बनाए तो उसको कस्टम ड्यूटी सब्जेक्ट टू ना हो, वो वहाँ पर बिना कस्टम ड्यूटी के DTA में से माल लेकर जाए, बना कर ले आए, जिससे वो जो 5 लाख करोड़ इन्वेस्टेड हैं उसका सही फ़ायदा देश को पहुँच सके। आज की तारीख में कुछ 1990 जैसी पोजीशन नहीं है कि उद्योग नहीं है, उद्योग बहुत हैं, परंतु नीति के आधार पर उनको सुचारू रूप से उनका फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे लगता है कि कहीं कुछ हद तक आज वाले अभी तक जितनी अभी डिस्कशन हुई है, बाकी तो फाइनेंस बिल में पता चलेगा, वो उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं रहा। नई चीज़ों पे स्ट्रेस जो एक आम आदमी को सबको रहता है, बजट के अंदर क्या क्या नया सरकार खर्च रही है उस पर रहा है। बट मुझे लगता है अब के बाद देश में इतना पैसा लगा हुआ है कि नए खर्च करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है घर में जो सामान बहुत है उसका ढंग से इस्तेमाल बहुत मैटर करता है। तो राहुल जी, एज अ इंडस्ट्री मैन और एज अ बिजनेसमैन, जो टैक्सेशन का इकोसिस्टम है, क्या हिंट करता है ये बजट? वित्त मंत्री क्या कहना चाहते हैं आप लोगों से जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं या फिर जो लोग धंधे में आना चाहते हैं या फिर जो कारोबार में ऑलरेडी हैं, इकोसिस्टम के बारे में क्या पता चलता है इस बजट से? वित्त मंत्री ये बता रहे हैं कि जैसे ग्रेच्युटी में चेंजेस हैं, ESI में चेंजेस हैं, तो वो ऐसा कह रहे हैं कि हम आपको HR, अगर हम कंपटीशन पे चाइना की बात करें, उसी तरीके से अच्छा HR मुहैया कराएंगे। हम उसमें आपके नए रखे हुए लोगों को कई तरह से बेनिफिट देंगे, उनके पास ज़्यादा इनकम जाएगी। जैसे मान लीजिए यदि आज कोई आदमी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है और उसकी 5 लाख या 4,90,000 आई थी, तो कुछ नहीं तो उसका 10% मतलब 50,000 रुपये उसका जा रहा था। तो आज यदि उद्योग सरकार की नीति को इस्तेमाल करके समझाना चाहे अपने स्टाफ को, तो 10% इजाफा तो अपने आप सरकार ने दे दिया। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर 10% इंक्रीमेंट जो एक आम आदमी एक्सपेक्ट करता है, गवर्नमेंट हैज़ गिवन दैट। नाउ इट इज़ इंडस्ट्रीज टर्न टू यूज दैट, टू इंक्रीज देयर इफेक्टिवनेस इनटू दैट एंड टू हैव अ वाइबल प्रोडक्ट। जैसे GST वाली स्कीम है, अब उसका बहुत फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर MSME से आप माल खरीद रहे हैं, आज की तारीख में यदि मैं MSME से खरीदूँ तो मुझे 12, 3 या 18 जो है पूरा टैक्स लगता है। यदि अब मैं नई नीति के आधार पर मैं किसी को नया उद्योग दूं और मैं कहूं कि ये माल जो मैं खुद बनाता था आप मुझे बनाकर सप्लाई करें, तो मेरे को GST रेट सिर्फ 1% देना है। वो बहुत बड़ा बदलाव है। उससे ऐसा बदलाव आने वाला है कि आज जो हम GST में खरीदते हैं कुछ भी, यदि मैं सप्लाई चेन का पार्ट हूँ तो हम पूरा क्रेडिट पीछे से अवेल करते हैं। जैसे मान लीजिए 12% की आइटम है मेरी, मैं 12 अवेल करता हूँ और आगे 12 में बेचता हूँ, तो उस केस में वो 1% वाले का मैं GST क्रेडिट अवेल ही नहीं करूंगा प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्योंकि मैंने उससे पूरा बनाया खरीदा है। तो MSMEs को प्रमोशन का इनडायरेक्ट मेथड बड़ा अच्छा यूज़ किया गया है। उसको प्रोपोगेट अच्छे से करने वाली बात है कि वो अच्छे से प्रोपोगेट हो। वित्त मंत्री की अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं स्पीच के दौरान, वो आम आदमी के दिल को ज़्यादा
छूना चाहते हैं। उद्योगों का नंबर शायद मुझे लगता है उद्योगों का सेकंड ही आता है, बट वो पॉपुलेशन का पार्ट है। Since we were talking about job creation, in the budget speech, the finance minister said that in EPFO membership, there was an increase of nearly 2 crore in 2 years, reflecting formalization of the economy and job creations. Will this take the discourse on job creation forward, considering what happened yesterday when Niti Aayog said that a particular report is only a draft? It is yet to be finalized and it is yet to be verified, and the final report is expected only in March sometime. And he also disputed the data, saying that if the nominal growth rate is as high as 11%, it can't happen, considering the situation with regard to credit growth that we have in the country and the investment rate that we have now, the private investment he was referring to. So do you see this discourse on job creation going forward with these figures, 1 crore in 1 year, 2 crore in 2 years? Well, the increment in the EPF payers is got two factors. One is those people who were getting paid by MSMEs and were not filing returns. So post demonetization, they had no option left. To bank that money, they had to be coming into TaxNet. And that's showing also. He's given the numbers of how post demonetization number of income taxpayers have increased. So if you had to deposit money into November 2017 in your bank account and you say I have a savings of 5 lakh rupees which I want to deposit, then you ought to have income of at least, if nothing else, 3 lakh rupees per annum to deposit that. So people who deposited cash into their bank accounts, they ensured that they start filing returns. So they started filing returns. The moment they started filing returns, their employer had to consider to pay PF on them. यदि एक एम्प्लॉई अपनी इनकम दिखा रहा है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर और यदि उसका एम्प्लॉयर पीएफ नहीं दे रहा तो वो भी एक समस्या है, तो उन्होंने पीएफ काटना स्टार्ट किया. दैट इज हाउ द टैक्स पेयर एडेड इनटू द इनकम टैक्स नेट एंड द रिवर्स इफेक्ट द ईपीएफओ पेयर्स इंक्रीज्ड. So it has got one component is this, another component, yes, the new employees who've been added. So government last year announced that part of new employees PF shall be paid by the government. That is one of the biggest. Second reason why PF paying number of people has increased. These are the two factors due to which it has increased. Employment creation, these two factors, none of them they say that it is direct employment creation. This is just bringing the already employed people into TaxNet. Employment creation will not directly have an impact of this number of people paying EPFO here on. राहुल, जो दुनिया के निवेशक हैं वो इस बजट को किस तरह से रीड करेंगे? जब आप इंटरेक्ट करते हैं इंटरनेशनली, जो फिस्कल डिसिप्लिन दिखाई है या नंबर्स हैं, बजट नंबर्स, तो उनका क्या रिएक्शन होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, वन थिंग इज़ वेरी गुड, इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर अ कंट्री लाइक अस वेयर वी हैव अ बिग पॉपुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पीपल डू नॉट रेट अस ऑन द बेसिस ऑफ टुडेज इनकम, दे सी हाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर. So if we are trying to increase the people in the pyramid upwards, so that matters a lot. There is no second thought about it. Fiscal deficit of increasing it from 3.3 to 3.4%, yes, is a matter of concern. But I think world would have already discounted it that it's election year. Government will give some kind of SOPs which may lead to slippage in fiscal deficit. It is probably already discounted. And in an economy like us, I don't see that any knee-jerk really matters. What matters is long-term position. If on a long-term basis, MSMEs can be promoted, because large corporates and government cannot create jobs for 1.25 crore people. It has to be MSMEs only. खुद ही उन लोगों में से कुछ लोग अपने लघु उद्योग चालू करके व्यवसाय चालू करेंगे तो ही एम्प्लॉयमेंट आ पाएगी, और कोई तरीका नहीं है. So probably MSMEs are the only target. Government increasing the allocation of GEM of 25% makes a lot of sense. That will increase, and it needs to be implemented also. I do not know, since last year this niche has been carved, but how much implementation it may be happening. The government, other than GEM marketplace, I have used that marketplace online portal myself. Government must come out with a list कि कौन-कौन सी चीज सरकार खरीदती है जिसमें कोई MSME है ही नहीं अभी. Okay. I had met MSME minister and his focus was well on that कि सरकार क्या-क्या चीजें खरीदना चाहती है जिसके ऊपर लोग कुछ व्यापार कर ही नहीं रहे MSME. वो फोकस पॉइंट यदि सरकार दे तो किसी भी शॉप से ज़्यादा बड़ी चीज़ है. आज आप कोई भी व्यापार स्टार्ट करना चाहता है, एवरी एम्प्लॉय हुज मेड गुड मनी इन 10-15 years of profession wants to start a business. The moment he has a list of the government supplies sought, he will have an opportunity. Anybody would like to invest 20 lakh rupees if he sees the return of say 5 lakh rupees per annum, where to supply something to the government where payment is assured, makes a lot of sense. Rather the only tax SOPs or any kind of SOPs, financial SOPs.
जो बजट साइज में जो टैक्सेशन के जो पॉइंटर्स हैं, जिसमें ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज़ बोल रहे हैं कि 25 लाख करोड़ रुपए का हमारे पास आएगा, और उसमें ये है कि जीएसटी से भी उनकी उम्मीदें बढ़ी है। आपको लगता है कि आगे जाते हुए जो जीएसटी है वो स्टेबलाइज होगा, टैक्स बेस बढ़ने से टैक्स रिलाइजेशन ज़्यादा होगा, और ये जो टैक्स जीडीपी रेशियो हमने देखा कि वो 12% को क्रॉस किया है, वो एक अच्छा साइन है सरकार के लिए भी, जिससे वो ठीक से अपना मैथमेटिक्स कर सकते हैं और शायद जहाँ खर्च करना चाहते हैं वहाँ वो खर्च भी कर पाएँ? देखिए, जीएसटी की पोजीशन ऐसी है कि अब अंदाज़न 1.5 साल हो गया है, स्टेबलाइज होना ज़रूरी है। पोजीशन ये है ऐसी, आज बहुत लोग हैं जो आज भी जीएसटी कानून नहीं समझ पा रहे हैं, जो ऐसा सोच रहे हैं कि हम 1990 से पहले जैसे काम करते थे उसी तरीके से काम करें तो शायद बेहतर होता। पर सरकार प्रोएक्टिव है इसको स्टेबलाइज करने के अंदर, परंतु आज भी जीएसटी में कई ग्लिचेस हैं। फॉर एग्जांपल, पीछे जीएसटी रिफंड की बात आती थी एक्सपोर्टर्स के लिए, अब बात थोड़ी उससे आगे बढ़ गई है। कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिसके अंदर ऐसा आ रहा है कि जीएसटी क्रेडिट लेने का ही ऑप्शन नहीं रह रहा, तो क्रेडिट ही नहीं लेंगे तो एक्सपोर्टर उसका रिफंड कहाँ से लेगा। ये बात अच्छी है, सरकार हर महीने मीटिंग कर रही है, बदलाव ला रही है, परंतु इस पर जल्दी सब कुछ सुचारू रूप से ठीक करने की ज़रूरत है। यदि एक बार व्यापारी जो आम एमएसएमई होता है, जो बहुत ज़्यादा कानून नहीं समझता है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया और यदि उसे लगा कि ये कानून का पालन करना मेरी समझ से बाहर है, तो फिर उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। मतलब बहुत मुश्किल से मुझे लगता है पिछले 20-25 सालों में ऐसा देखा गया है कि पीपल हैव बीन मेड टैक्स पेयर्स, ईपीएफओ पेयर्स, they are all doing on an accounted terms. So it is important that within this tenure, this gets into line. Regarding GST revenues, I feel this revenue collection without refund situation is very tricky number. It is giving an A without reducing the B refund is tricky. So it has to be consolidatedly seen. Whereas direct tax revenues, I believe the moment 5 lakh bracket comes into picture, so the way it is, those who will have 5.5, 6 would like to go back to 5 lakh. अगर मुझे 50,000 और देना है और मैं 5 लाख के ऊपर हूँ, तो शायद मैं ऐसा ना कर दूं कि नहीं मैं ऐसा ना कर दूं कि मैं कहूँ 30,000 आप मुझे कम ही दे दीजिए। शायद मैं 5 लाख से कम ही रह जाऊँ। Probably that will be a better position for me. If I surrender 10,000 salary to my employer, so it is marginally better to me to get 4.9 and to not to pay tax. Otherwise, in fact, the finance minister said in the press conference that we may consider, extending those benefits to those earning more than 5 lakh, maybe in the general budget. But of course, that is not an indication of anything to come. But in terms of the tax proposals, do you see an impetus for the real estate sector? Real estate, there is a huge boost. So, आज तक भारत में ये होता था, if I have one house and I sell that and I buy a new house, so whatever money comes in, whatever I have gained into through my selling of my old house doesn't get taxed, provided I use the same amount to buy a second house. That means 1A house instead of another new one, 1A. Now same option is available for 2 and 2B. So if I had 2 houses, now it is a promotion for real estate, huge promotion by Government of India, that you can buy a second house. Uska no notional rent will be charged as a tax to you. At the same time, you can trade on to it. मतलब आपने 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा और वो आपका 2 का हो गया और वो 2 का बेचकर आपने कोई और 2 का या 2.5 का खरीद लिया, तो you can, a commoner can actually trade into it. So government, what is it trying to do? Instead of investors dealing with the real estate market, they are bringing the common investors, common man as an investor. हर आदमी जिसके पास एक मकान होता है, उसको दूसरा मकान खरीदने के लिए प्रमोट किया जा रहा है कि आप खरीद फरोख्त में इंटरेस्ट लीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट को रियल एस्टेट के थ्रू बढ़ाइए। वो एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। आज रियल एस्टेट के पास देखने के लिए जो कुछ फंड्स हैं और कुछ केवल स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स हैं, लार्ज साइज इन्वेस्टर्स, वही टारगेट हैं। यदि फ्यूचर में वो एक आम आदमी टारगेट बन जाता है, उसका बहुत बड़ा इम्पेटस मिलेगा। मतलब रियल एस्टेट सेक्टर को ज़रूरत है कि वट एवर गवर्नमेंट हैज़ गिवन should materialize onto it, should mobilize onto it, and should try to use that demand which will come into picture for their long-term purposes. GOM was also being informed to look into whether to bring real estate into GST. So if that decision takes place, will that be a further impetus? Group of ministers have already been formed. Yeah. The issue is real estate में यदि आप बनता हुआ मकान खरीद रहे हैं तो अलग provisions हैं, और आपने if you have bought a made house then it is different. So that is the tricky position where lot of confusion is there. People are subject to GST, people are not subject to GST. Earlier the rental issues were there. But I believe if had it been in the budget, it would have made more of sense. Because you see, common people address these things only once in a year. So today, any commoner, if you take yourself also, then today you would like to really assess what has been my tax situation.
but you would not do it every month, every quarter, day in, day out, that how should I plan my investments and all those things. So probably that impetus what GOM had to give, had it been given through today's budget only, after approval through yesterday's the GST Council, would have made more of impetus to the real estate sector. But yes, everything has a constraint, everything can't be done as what is best for. Especially when so many states are involved and there are state finance ministers also. राहुल, इसमें जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को लेकर के स्टैम्प ड्यूटी में वो रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, उससे कुछ क्या फ़ायदा होने वाला है? हालांकि वो तो मेरे ख्याल से रियल एस्टेट वाला स्टैम्प ड्यूटी नहीं है, लेकिन इससे सेक्टोरली क्या फ़ायदा होगा अगर समझना चाहें इसको हम आसान? देखिए, स्टेट की जो स्टैम्प ड्यूटीज़ हैं, जो एक मकान की होती है तो स्टेट सरकार को ही मिलती है, तो या तो उसको GST की तरह कंसोलिडेट करने की सोच है तो बात बहुत बड़ी हो सकती है, तो बहुत आसान हो सकती है। अदरवाइज देयर आर वेरिएबल रेट्स इन एवरी स्टेट। किसी स्टेट ने लेडीज़ के लिए कम ड्यूटी रखी हुई है, किसी ने मेल के लिए ज़्यादा ड्यूटी रखी हुई है, कंपनीज पे ज़्यादा रखी हुई है। सो दैट सिचुएशन हैज़ टू बी हैंडल आइदर टू ब्रिंग थ्रू अ कंसोलिडेटेड सिस्टम लाइक GST, देन अ सिंगल रेट कम्स इनटू पिक्चर, then central government can control it and distribute revenues among states. Otherwise it will not really have a direct impact with the real estate sector with the present provisions. Now in the budget proposals, the finance minister has said that the government has received over 1 lakh crore rupees from disinvestment proceeds during 2017-18 and that we are confident of crossing the target of 80,000 crore rupees this year. So once these disinvestment proceeds materialize, I mean, there were expectations that the government may not be able to reach this target of 80,000 crore rupees, but the government seems to be proving the naysayers wrong by reaching the target of 80,000 crore rupees, and that will help in the revenue mobilization. See, the selling the assets and then realizing your money and spending on revenue expenditure itself is little an issue, you know, when we do our balance sheets, when we do our businesses. So businesses never take the income from selling of assets for the purpose of revenue expenditures, whereas Government of India takes it on a consolidated basis, so therefore they really consider that as an income, because ये आय आपको हर साल नहीं मिल सकती, सरकार का खर्चा तो हर साल है। तो आज इस साल आपने अपने एसेट्स बेच लिए सरकार ने 80,000 करोड़ के या 1 लाख करोड़ के, तो अगले साल तो हर चीज़ आप हमेशा तो आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सरकार अपने पुराने व्यवसाय बेच के उतने पैसे ला पाएंगी। सो इट इज़ वन ऑफ सिचुएशन दैट गवर्नमेंट हैज़ disinvested 80,000 crores out of some idle asset. It absolutely makes sense that instead of putting an idle asset in balance sheet, you better sell it and spend it on people at large for a long-term purpose. But at the same time, this doesn't have a long-term bearing. You can't get this money every year. Rather, it is a threat that next year if I didn't have 80,000 crore from my disinvestment, then my fiscal deficit numbers may go up. Fiscal deficit क्या है? आय और खर्चे का, income and expenditure का ratio है. That's the position. So whatever is the deficit computed by GDP, मतलब यदि सरकार ने 100 रुपये कमाए और 120 खर्चे, तो 20 को यदि आप डिवाइड कर दें एनुअल GDP से, वो परसेंटेज फिस्कल डेफिसिट है। तो इस 80,000 करोड़ रुपए जो मैंने अपने एसेट्स को बेच के कमाए इस साल, यदि अगले साल नहीं आते, तो रादर मेरे फिस्कल डेफिसिट नंबर्स चैलेंज हो जाते हैं कि मेरा घटौती ज़्यादा ना हो जाए। तो मैं इसको मानता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा आपको आगे का नहीं दिखता। रादर इससे आपको वो खर्चे करने चाहिए जो कि आपके बार बार खर्चे आपको नहीं मिलते हैं, कोई आपदा से रिलेटेड, इस तरह से रिलेटेड जो आप हर साल एक्सपेक्ट नहीं करते, कैलेमिटी से रिलेटेड। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो अंतरिम बजट 2019-20 पर जो हमारी चर्चा चल रही है, उसमें हम अगर मोटी बात कहें तो इस साल यानी अगले साल का जो बजट है, वो उसका जो बजट साइज़ है, यानी कितने लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे सरकार पे, अगर उसका फिगर हम आपको बताएं तो 27,84,000 करोड़ रुपए अब तक का सबसे बड़ा बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है। और इसमें से जो सब्सिडीज़ हैं वो 3 लाख करोड़ रुपए बढ़ जाती हैं इस साल के लिए। और जो फोकस दिख रहा है वो है खाद्य सब्सिडी पर, फर्टिलाइजर सब्सिडी पर और फ्यूल सब्सिडी पर। फ्यूल सब्सिडी में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है और मुझे लगता है जो पेट्रोलियम सब्सिडी है करीब 37,000 करोड़ की, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखा है। फर्टिलाइजर ज़रूर 70,000 करोड़ रुपए से 75,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। फूड सब्सिडी पर सबसे ज़्यादा खर्च किया गया है 1.84 लाख करोड़ रुपया। और ऐसा लगता है कि अब जो सरकार का फोकस है वो सब्सिडीज़ के साथ साथ इनकम पर जा रहा है। और जिस तरह से हमने देखा कि जो छोटे और सीमांत किसान हैं उनको डायरेक्ट इनकम बेनिफिट के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी की दिशा में एक अहम कदम बता सकते हैं जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए किया गया है। राहुल, आपकी एक राय इस चीज़ पर समझना चाहेंगे, पेंशन स्कीम, चूँकि आप भी कामगारों के साथ डील करते हैं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए उनको एक सामाजिक सुरक्षा की शुरुआत मैं कहूँगा, और एक ऐतिहासिक शुरुआत ज़रूर की गई है कि कम से कम जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है उनको एक सोशल सिक्योरिटी की फीलिंग आए,
ये आंकड़ा बहुत बड़ा नहीं है, कंट्रीब्यूशन बहुत बड़े नहीं है, लेकिन जो डायरेक्शन है या जो शुरुआत है वो शायद बहुत ही अच्छी कही जा सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जहाँ पे 10 से कम एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग पीएफ में कवर नहीं होते, तो ना एम्प्लॉयर इतना बड़ा होता कि वो पीएफ के कानून के साथ जूझ सके, ना ही वो एम्प्लॉयज़ उसकी वैल्यू समझते हैं। तो यदि सरकार डायरेक्टली उनको पीएफ में कवर करती, शायद जो 55 रुपये प्रति माह के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया है, वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि लाइफ में सेविंग्स बहुत क्रिटिकल हैं। चाहे आपकी इनकम कम है, ज़्यादा है, क्योंकि आप इनकम जितनी मर्जी बढ़ा लीजिए, खर्चे तो आप जितने मर्जी बढ़ा सकते हैं उसके अनुपात में। तो इम्पॉर्टेंट है कि कुछ ना कुछ, और 55 रुपये ऐसा अमाउंट है कि मुझे लगता है कि आसान है, और यदि गवर्नमेंट डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र के थ्रू उन 55 रुपये वालों को कल को बढ़ोतरी देना चाहे पीएफ के फ़ायदों में, चाहे वो किसी भी प्रकार से दिए जाए, चाहे उनकी इन्वेस्टमेंट्स पे ज़्यादा ब्याज दिया जाए। मान लीजिए आमतौर पे पीएफ का ब्याज एक ही फिक्स रेट होता है 8 के आसपास, यदि वो 55 वालों को वो पीएफ का ब्याज 10 दिया जाए, 12 दिया जाए, तो सच में इंक्लूसिव ग्रोथ की दिशा के अंदर बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। जो छोटे एम्प्लॉयर होते हैं वो कहते हैं हम पीएफ नहीं देते हैं, तो एक जो नया एंट्रेंट होता है प्रोफेशनल, वो देखता है जहाँ पीएफ और सब सुचारू रूप से चीज़ें हैं, मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ ना जाऊँ जहाँ पे पीएफ वगैरह नहीं कटता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छा इनिशिएटिव है। अब वो एम्प्लॉयर भी कह सकता है कि हाँ जी देखिए, पीएफ तो आप सरकार के डायरेक्ट खाते से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे ही वो चीज़ को कोऑर्डिनेट करें। दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव। अभी जब आप डिस्कशन कर रहे तो एक जो ग्राफिक्स के जरिए हमने दिखाने की कोशिश की, स्वच्छ भारत के ऊपर जो खर्च है, अब उस ट्रेंड में हमने देखा कि साल दर साल कमी आई है। जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान पर सरकार ने खर्चे में कटौती कर दी है, और बहुत सारी जो स्कीम्स हैं वो बहुत सारे लोग अभी इसका विरोध करते हुए कहेंगे कि तमाम जो योजनाएं हैं उसमें खर्चा कम किया गया है। लेकिन स्वच्छ भारत जैसी योजनाएं, या फिर जहां पर मिसाल के तौर पर जो दूसरी आवास योजनाएं हैं, अगर वहां पे खर्च में कटौती होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने में, तो ऐसा लग रहा है कि काम बहुत ज़्यादा कंप्लीशन की ओर है, और जो ज़रूरत है उस स्कीम को लेकर के, मिसाल के तौर पर स्वच्छ भारत अभियान, उसमें ज़रूरत थोड़ी कम हुई है और इसलिए लोकेशन कम दिख रहा है। तो ये एक नया चेंज दिख रहा है कि जो टारगेट सेट्स किए जा रहे हैं बजट में वो पूरे किए जा रहे हैं। देखिए, अगर स्वच्छ भारत की बात करें तो देश बहुत बड़ा है, स्कोप तो बहुत है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि स्वच्छ भारत की तरफ आज भी ऐसा नहीं है कि हम ये माने कि ओवरऑल देश के अंदर सफाई का इंडेक्स में फ़र्क है, बट इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कटौती, देखिए हम टूरिज़्म के अंदर कुछ हद तक किसी कारणों से थोड़ा पीछे जा रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी का इशू था जो था, तो उसके हिसाब से स्वच्छ भारत पे खर्चा करके और टूरिज़्म अट्रैक्ट करना भी एक क्रिटिकल आस्पेक्ट है। मुझे नहीं लगता कि स्वच्छ भारत, हम इतने बड़े देश को हम मान लें कि 2-3 साल में हमने साफ़ कर दिया ना, बट इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी बात 125 करोड़ आदमी के सामने रख दी कि देखिए हम साफ़ सफाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी चीज़ को अपना स्टैंडर्ड मानते हैं और उसके आसपास जाना चाहते हैं, तो उस तरह माइक्रो डिसीजन उस स्टेप पे लेने चाहिए। परंतु स्वच्छ भारत पे कटौती, मुझे नहीं लगता कि अभी हमने ऐसी कोई, ये सच है, जग जाहिर है कि हम ऐसी कुछ इतने साफ़ सुथरे हो गए हैं कि शायद उस पर कटौती की तरफ जाने का कोई ऑब्जेक्टिव हो। हाँ, प्रॉबेबली जो सैनिटाइजेशन के लिए जो बजट्स थे वो जरूर मैं मानता हूं। शौचालय तो हमेशा नहीं बना सकती सरकार, जितने बनाने होंगे उतने सरकार ने बना लिए होंगे, बट स्कोप बहुत है उसके अंदर। ऐसा रूरल सैनिटेशन कवरेज दो वी नो हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 40% in 2014 to 98%, but there are other areas of focus, ODF plus, ODF plus, and waste to wealth campaign, Govardhan, so they are also a part of Swachh Bharat. Total transfers to states and union territories have gone up if you compare from the last financial year's revised estimates. From this financial year's revised estimates for the next fiscal, there is an increase of around 1,24,036 crore rupees. So that is the greater devolution that is going to take place to states and UTs. So once again, a lot of focus on cooperative federalism, on ensuring that there is sabka saath sabka vikas. The states will get more money and then they will use it more in their schemes, and development will reach the grassroots. See, spending through states and spending through the system, as in hierarchy, as in central government giving funds to state government making their micro schemes onto that and then implementing it on ground, has not been a very great success in our federal structure. Why direct cash transfer is a success? It has proved that the overheads of the management of us as a country, because of numbers being that big, is very high, due to which the ratio of the impact of money spent and what has actually been has led to well-being on ground, the ratio is very skewed. This is what people say in our country generally, कि पैसा बहुत आता है, पहुंचता कम है. उसका रीज़न है overheads बहुत high हो जाते हैं because of this federal kind of way of spending it.
Instead of that, if there is again a direct cash transfer to this all, as in cooperatives and societies, people forming them up, submitting their evidences of the well-being done on ground with little markup available for their overheads, would be a better proposition than spending through this kind of state government kind of process. But then, because state government also, you have to ensure, Government of India can't interfere too much into states to ensure that what quality of spending has been done. Whereas I'll say, even if it has to be done in this way, there has to be a rating process in place. The state governments must get into some kind of race, that which state has demonstrated the best level of implementation of central government funds. Without accountability on the part of the state, funds being dissipated really do not give that kind of well-being on ground. Yes, Government of India shows its willingness and its efforts qua that. There is no doubt about that. But at the same time, ratio between money spent and well-being on ground matters a lot. Effectiveness has to improve. डिजिटल इंडिया क्रांति की बात करते हुए जो बजट है वो ये कहता है कि वो हमारा जो विज़न है अगले 10 साल का वो भी, और जो न्यू इंडिया का विज़न है जिसमें सभी गाँव तक जो डिजिटल इंडिया की बातें हैं उसको पहुंचाना, जो स्पीड है उसको और बेहतर करना, जो सर्विस डिलीवरी सिस्टम है उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव पारदर्शी बनाना, वो शायद एक नया तरीका होने जा रहा है विकास का, जहाँ पर रोज़गार भी अवसर मिलेंगे आपको और थोड़ी सी चीज़ें और भी ज़्यादा आसान होगी। तो उस सिस्टम में बदलाव के लिए ये जो फोकस है, या फिर कहें नई टेक्नोलॉजी पे जो फोकस है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है बदलते हुए टेक्नोलॉजिकल आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? यस, टेक्नोलॉजी इज़ मेकिंग सो मच ऑफ डिफरेंस फ्रॉम बिजनेसमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब जैसे अब देखिए ऑनलाइन रिटर्न्स वगैरह जीएसटी की आ गई हैं, और सरकार सच में अपनी तरफ से तो कह रही है कि आप लोगों को किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल से अपनी रिटर्न्स भरिए। सो प्रॉबेबली ओवर द पीरियड ऐसा देखा जाएगा कि लोग अपने आप रिटर्न्स भरेंगे और अपने आप उसको सीखेंगे भी। ऑनलाइन व्यापार के अंदर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू भी लोग को उसी तरह से ऑर्डर्स लेंगे। तो टेक्नोलॉजी और बैंडविड्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब देश उस जगह पर है जहाँ पर जैसे लोग को साक्षरता अभियान वाली सिचुएशन थी, आज उसी तरह टेक्नोलॉजी की साक्षरता अभियान वाली सिचुएशन है कि अ कॉमन मैन मस्ट नो हाउ टू यूज दिस बैंडविड्थ, इंटरनेट बैंडविड्थ, फॉर क्रिएटिंग बिजनेस, फॉर डूइंग कंप्लायंस ऑफ बिजनेस, एंड इवन फॉर हायरिंग पीपल एट लार्ज. Government must put even the employment system through some online mechanism, the way government e-marketplace has come into picture. So government has unemployment data of all the states and everything. There are states where you can register if you are unemployed. So probably if that is also brought online, we can see private players like Naukri.com and other players, Indeed.com, who have consolidated this data and made it itself a business. So probably government's this initiative, if coupled with specific social issues being targeted, is going to improve effectiveness and implementation on ground to a great deal. तो अंतरिम बजट पर ये जो चर्चा है लगातार जारी है। हमने देखा कि अब जो तमाम विभागों के मंत्री हैं वो लगातार इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और इस बजट की जो बड़ी बातें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, और प्रधानमंत्री के जो पहले रिएक्शन है वो आपको हम ज़रूर इस चैनल पर सबसे पहले दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो परिचर्चा है वो लगातार जारी है, और राहुल जी जो कि एक्सपोर्ट्स की दुनिया से या फिर कहें कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की दुनिया से और जो कारोबार जगत है उससे जुड़े हुए हैं, और लगातार जो एनालिसिस है वो इस वक्त जारी है हमारी। जो तीन बड़े फोकस उस पर हम चर्चा कर चुके हैं, जो नंबर्स हैं डिटेल्स में हम जा करके देख चुके हैं कि बहुत ज़्यादा अरिथमेटिक में चेंजेस नहीं किए गए हैं। केवल किसानों के लिए जो प्रोविजंस किए गए हैं 20,000 करोड़ रुपए इस साल और अगले साल 75,000 करोड़ रुपए, उसकी वजह से 3.3% के जीडीपी का जो फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य था उसके थोड़ा सा ईज आउट किया गया है। केवल इस साल के लिए 3.4% पे हो गया है, लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म का जो 2020-21 का जो टारगेट है 3% का, उसको इंटैक्ट रखा गया है। यानी अब भी सरकार के पास एक रूम बचता है कि जो वो वित्तीय अनुशासन है जिस पर निवेशकों की, चाहे वो घरेलू हो या फिर विदेशी, जिनकी निगाहें रहती हैं उसको बिल्कुल स्टिक किया जाएगा। सरकार ये कोशिश कर रही है और भरोसा कर रही है उन टैक्स पेयर्स पे जो ईमानदारी से अपना टैक्स देने के लिए आगे आ रहे हैं। सरकार भरोसा कर रही है अपने जीएसटी सिस्टम पे, जो लगता है कि अब ज़्यादा स्टेबलाइज कर जाएगा और वहाँ से रियलाइजेशन ज़्यादा होंगे। टैक्स सिस्टम पे भरोसा कर रही है और ईमानदार लोगों को और भी ज़्यादा प्रोत्साहित करने की दिशा में, जो टैक्सेशन के मोर्चे पर, जो किसानों को इनकम दी जा रही है उसके मोर्चे पर, पारदर्शी तरीके से जो ये कोशिश की जा रही है कि जो स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए और जो लाभ है वो लोगों तक सीधे पहुँचाया जाए, उस पर जो कोशिश है वो सरकार को उम्मीद है कि जो सब्सिडी का जो खर्च है या फिर जो कंप्लायंस का खर्च है सरकार का, इम्प्लीमेंटेशन का खर्च है, उसमें कमी आएगी। लेकिन स्टेट्स को बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि बीते सालों के मुकाबले जो उनका डेवल्यूशन बढ़ा है उससे उनकी जो योजनाएं हैं अपने राज्य में, कल्याण की जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने में उनको और भी ज़्यादा मदद मिलेगी। और राहुल जी,
जी. Yeah, you know, besides agriculture, there is also considerable focus in the budget speech on rural development schemes. I was looking at the allocation for Manrega, and that has been increased to 60,000 crore rupees. Last year it was 55,000 crore rupees, and that had the maximum spend in for any rural development program. This year, like I said, 60,000 crore rupees for Manrega, for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, also a substantial increase, a moderate increase or a substantial increase, whatever you might like to call it, 15,500 crore rupees, 19,000 crore rupees. So again, is the idea to ensure that those who need help the most get it first, for instance, because Manrega is all about rural employment, Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana is all about rural connectivity, and besides the other two schemes that we are seeing in agriculture, small and marginal farmers being helped, and in the pension security scheme, the lowest in the strata who come in the unorganized sector being helped. So an inclusive budget all in all? See, it's an inclusive budget and a 10% increase, kind of 10% from 55,000 to 60,000 crores in Manrega. Manrega is somewhere seen to be an austerity measure, as a matter of fact. Those who are not getting employed on its own in the system. So government is taking initiative to get them some money to get it going. Probably spending money in creating entrepreneurs is more important, because that solves the problem on a long-term basis. Austerity measures have not worked out anywhere across the globe, has never been able to make governments and economies subsistent on their own. So it's important that government spend on creating entrepreneurs more than subsisting or helping people at large. But yes, you are absolutely right. Those who are on the lowest level of pyramid, marginal positions, they are high. I mean, they are not on the radar of people for being employed. They are not on the radar of people for being helped. Even for NGOs, they feel they are the last mile situations for which there is some initiative. So that has to be government only who can touch those corner areas. And yes, being an election year, that's one of the critical things. Probably that is why government has increased the budget allocation on that and has tried to touch the least of the touched upon people, so that the government gets the benefits of that, and at the same time is leading to some kind of well-being.